Good morning. Welcome to my class again. So, in the last class we discussed about coordinate geometry and we'll study the three topics in class 10: distance formula, section formula and area of triangle or quadrilateral. So, distance formula, that is given by the formula under root difference of abscissa का square plus difference of ordinate का square. Got it ना? So वो फॉर्मूला कहाँ से आया बता देता हूँ. Distance formula. So suppose this is the Cartesian system, Cartesian plan, Cartesian system, Cartesian plan. This is x-axis, this is y-axis, this is minus x, this is minus 1. This is the point A whose coordinate is x1, y1. This is the point B whose coordinate is x2, y2. We need to find the distance between these 2 points. That is AB. We need to find AB. We need to find AB. So let coordinate of A is x1, y1. Coordinate of B is x2, y2. We need to find AB. So if you need to find AB, first of all we will draw the perpendicular from the point A on both the axes. So we know this much is x1. Why? Because x part is x1 here. Good. And this much is y1. Good. Similarly, we'll draw the perpendicular from this point B. So this much will be y2. These whole is starting from the origin to this point, and this will be x2. Why? Because x कोऑर्डिनेट जो होगा इधर से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट होता है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में 9th में वी गॉट दिस सिस्टम. और ये y पार्ट दैट इज y2, ये x2. और इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1. सो ये पार्ट x1 था, ये पार्ट y. हमारे को डिस्टेंस चाहिए AB का. तो हमने अगेन क्या कर दिया, इससे भी परपेंडिकुलर बना दिया. बना दिया and name it as suppose C. Name it as C. Suppose this is a M point, N point, this is M point, this is P point, this is Q point. So how much will be BC? BC will be total minus this MC. Good. So AN is y1, so MC is y1. Good. And total is BM is y2. So y2 whole minus this one, this much CM is y1. So y2 minus y1 will be BC. Therefore, BC equal to BM minus CM. BM is y2 minus CM is y1. Next, AC equal to this total minus this. So AC you can write QC minus QA. Good. QC minus QA. That is equal to how much is QC? QC is this OM. Origin is O. OM is x2. And QA is this much OM. ON जितना है QA भी उतना है. तो x1.
Good. So BC or AC we have got. BC and AC we have got. So now we can find this much distance AB. We can distance we can find out by applying Pythagoras theorem in triangle ABC. Yes. Now in triangle ABC, AB square equal to AC square plus BC square. What is AC square? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC. AC का ये निकाल रखा हूं ना, इसलिए पहले AC और BC हमने निकाल लिया. तो ये AC का स्क्वायर. नेक्स्ट BC कितना था? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. देयरफॉर ये AB स्क्वायर था, implies AB will be equal to स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज हाउ दैट फॉर्मूला कल हमने जो बताया था आपको, ये फॉर्मूला ऐसे आया. ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 के जगह पे x1 माइनस x2 भी कर सकता हूं. अगर ये पॉइंट को x2 मान लूंगा, x2 y2, ये पॉइंट को x1 y1, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा और स्क्वायर में कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स अगर आपको ऐसे निकालने देना कि 3 7 और माइनस 4,2 का आप डिस्टेंस निकालो, तो आप किसी से किसी को माइनस करके कर सकते हो. लेकिन दैट शुड बी फर्स्ट, आपको दोनों का एक्सपर्ट लेना पड़ेगा, फिर वाई पार्ट लेना पड़ेगा. तो दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगा, -4 से -3 को माइनस करना, -7 आएगा. कभी अब दिक्कत फील करोगे तो मैं क्या करूंगा, 3 से -4 करूंगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 से 2 को कर दूंगा. और अगर ये प्लस होता तो मैं कैसे डिस्टेंस निकालूंगा, 4 से 3 को करूंगा, एक बार 4 - 3 का होल स्क्वायर करूंगा एंड प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर, उसको अंडर रूट में ले लूंगा. तो जो बड़ा है दोनों एक्सपर्ट का, उससे वो वाला स्मॉल वाला माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में. और मैं इसलिए दैट इज व्हाई इन शॉर्ट आई हैव रिटेन द फॉर्मूला एज डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. Yesterday I gave you some homework. I think you have done that just to find the distance formula. Some more formula from some more examples from more questions from NCERT we will do today. Then from tomorrow हमने section formula में जाना. Okay. अच्छा, exercise 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स निकाल लेना. उसमें ट्री वाला मैं कर देता हूँ, आपको ट्री वाला थोड़ा दिक्कत आएगा. फर्स्ट का थर्ड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. दे आर ए comma b and minus a comma minus b. हाँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला इज इक्वल टू ए, ये माइनस माइनस ए कर दूंगा तो प्लस ए हो जाएगा ना, कल भी बताया था आपको, होल स्क्वायर प्लस बी, ये माइनस माइनस करके प्लस बी हो जाएंगे. अगर ये सिंपल ए होता तो ए माइनस ए का होल स्क्वायर करते, अगर ये प्लस भी होता तो वो करते, समझ गए ना. तो ये हो जाएंगे हमारा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर. तो दिस विल इम्प्लाइज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. इसका 4 कॉमन ले सकता है अंदर दोनों में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये 4 में बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b. गॉट इट ना. 4 को बाहर हमने ले आएंगे, स्क्वायर रूट में तो 2 ही तो आता है. हाँ, तो अंदर रूट ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर लो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ. डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने अभी नहीं किया, ओनली जस्ट अभी आपको क्वेश्चन मिला टू फाइंड द डिस्टेंस. तो क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, देखना.
चेक करना है हमारे को इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स आपको सबसे पहले कोलिनियर का मतलब बता देता हूं। अच्छा, एक्चुअली को मीन्स आपको पता है, को मीन्स सपोर्ट, को कैप्टन, वाइस कैप्टन। को मीन्स सपोर्ट, असिस्टेंट। लाइन मीन्स लीनियर से लाइन, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कोलिनियर मीन्स असिस्टिंग लाइन। कोलिनियर मीन्स असिस्टिंग लाइन। दैट मीन्स हमारे को क्वेश्चन अभी प्रूव करना है, प्रूफ दैट चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर, जो भी गिवन पॉइंट्स है वो क्या क्या दे रखा है, 1,5, 2,3 एंड -2, -11। हमको चेक करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर मीन्स क्या बोला, को मीन्स असिस्टेंट, दैट मीन्स टू हेल्प, टू असिस्ट, and linear means from the word line it becomes linear. So collinear means these 3 points are making a line or not. The question is to check whether these 3 points are collinear, means whether these 3 points will lie on a same line or not. That means these 3 points ऐसे भी तो हो सकता है, that means these are not collinear. ये कोलिनियर कैसे होगा कि अगर इसी को सेम लाइन में ये तीनों पॉइंट आ गया, सपोज ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये सी पॉइंट मान लिया, अगर ये एक ही लाइन में इफ ए बी सी आर लाइंग, दैट मींस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं कल कर दूंगा। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए बी का निकालो, गुड। बी सी का निकालो, बी सी का भी तो निकालोगे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस। फिर ए सी का निकालो, तीनों पॉइंट निकाल लिए। अच्छा, हमको कैसे पता, सी पॉइंट इधर भी हो सकता है, बी पॉइंट इधर भी हो सकता है, बी पॉइंट इधर भी हो सकता है, ए पॉइंट इधर भी हो सकता है। सो वो हमारे को डायग्राम के हिसाब से डोंट मैटर। तो हमने ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेंगे ये तीनों पॉइंट्स में, फर्स्ट ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी डिस्टेंस, फिर ए सी डिस्टेंस। तो ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अब चेक करो, मान लो ये 7 आ गया फर्स्ट ए बी डिस्टेंस, ये आ गया 9 इस बी सी डिस्टेंस, फिर ए सी आ गया 2, तो मैं बोलूंगा कि दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाउ कैन यू से, व्हाई, बिकॉज सम ऑफ द 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देन दैट बिकम्स द कोलिनियर। सपोज ये 17 आ गया, ये 9 आ गया और ये आ गया 10, मैं बोला दिस इज नॉट कोलिनियर, व्हाई, बिकॉज सम ऑफ दिस 2 इज नॉट थर्ड वन। अगर ये 8 आ जाएगा तो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो फाइंड द डिस्टेंस एंड चेक if the sum of the any 2 distance equal to the third distance, तो ये कोलिनियर होगा। ट्राई दिस एट होम, मैं आपको कल कर दूंगा। ओके, थैंक यू।